بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے بچوں، لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا، ٹمپریچر کلاسیفیکیشن آف اینیملز آن دی بیسس آف سورس آف ہیٹ پروڈکشن۔ اس کی بنیاد پر ہم نے اینڈوتھرمز، ایکٹوتھرمز اور ہیٹروتھرمز کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے ریگولیشن آف ہیٹ ایکسچینج بٹوین اینیملز اینڈ انوائرمنٹ۔ پہلے تو بیٹا ٹائٹل سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بیٹا مختلف سیزنز میں گرمی ہو تو ایک جاندار جو ہے ماحول سے کافی ہیٹ اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے، گین کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس گین کو ایک لمٹ تک رکھنا ہوتا ہے۔ پھر اگر سردی کی بات کریں تو جاندار کا باڈی ٹمپریچر ماحول کے ٹمپریچر سے زیادہ ہوتا ہے اور جاندار کے جسم سے ہیٹ لاس زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ماحول کی جانب، لیکن اس جاندار کو اس ہیٹ لاس کو بھی ایک رینج کے اندر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ حد سے زیادہ گین کر لے گا تب بھی باڈی ٹمپریچر جو ہے نارمل سے بڑھ جائے گا، اور اگر وہ زیادہ لاسٹ کر دے گا تو ٹمپریچر نارمل سے گر جائے گا، اور دونوں کنڈیشنز جو ہیں وہ خطرناک ہیں۔ تو اس لیے ایک جاندار کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ماحول کے ساتھ ہیٹ ایکسچینج کو ریگولیٹ کرے، اپنی نارمل رینجز کے اندر رکھے۔ تو آئیے بیٹا دیکھتے ہیں کہ مالک کائنات نے جانوروں کو ایسی کون سی اڈیپٹیشنز سے نوازا ہے جن کے ذریعے وہ ماحول کے ساتھ ہیٹ ایکسچینج کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ بیٹا وہ کہتا ہے اینیملز یوز ڈفرنٹ میکینزمز فار سچ ریگولیشن اینڈ دیز آر آف اسٹرکچرل، فزیولوجیکل اینڈ بیہیویئرل ان نیچر۔ بیٹا ایک جانور ہیٹ ریگولیشن کے لیے تین طرح کی اڈیپٹیشنز رکھتا ہے۔ نمبر 1 اسٹرکچرل، ساختی اڈیپٹیشنز ہیں، ساختی مطابقتیں ہیں۔ فزیولوجیکل، بیٹا فزیولوجیکل کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے وہ فزیولوجی بایولوجی کی ایک برانچ پڑھی تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ اس میں ہم اعضاء کے فنکشنز کو پڑھتے ہیں۔ تو فزیولوجیکل کا مطلب فنکشنل اڈیپٹیشن، اور بیہیورل اڈیپٹیشنز بیٹا یعنی رویاتی جو اڈیپٹیشنز ہیں وہ بھی ایک جاندار کے پاس ہوتی ہیں فار دی ریگولیشن آف ہیٹ ایکسچینج۔ تو تین جو ہے بیٹا اڈیپٹیشنز ہیں جن کے ذریعے ریگولیشن کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 از اسٹرکچرل، نمبر 2 از فزیولوجیکل اینڈ نمبر 3 از بیہیورل۔ تو آئیے بیٹا ڈسکس کرتے ہیں اسٹرکچرل اڈیپٹیشنز کو۔ اڈیپٹیشنز بیٹا کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اڈیپٹیشن کا مطلب کیا ہے۔ اسے اردو میں ہم کہتے ہیں، اڈیپٹیشن کا مطلب ہوتا ہے مطابقت، کسی شے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی، کسی شے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ۔ مطلب بیٹا کسی جاندار کا اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جانا، اس کو اڈیپٹ کر لینا، یہ خاصیت اڈیپٹیشن کہلاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہیٹ ریگولیشن کے لیے کسی جاندار میں اسٹرکچرل اڈیپٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ These may be a long-term changes in subdermal fatty layer insulation۔ بیٹا انسولیشن کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو غیر موصل ہو۔ اب غیر موصل کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس میں سے یا تو حرارت نہ گزر رہی ہو یا بجلی نہ گزر رہی ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہماری یہ جو بجلی کی تاریں ہیں بیٹا، ان کے اوپر وہ انسولیشن چڑھی ہوتی ہے، انیمل چڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بیٹا جانداروں میں اللہ پاک نے ان کی سکن کے نیچے چربی کی ایک تہ لگا دی ہے، فیٹس کی ایک تہ لگا دی ہے، جو کہ ہیٹ کے لیے انسولیٹر کا کام کرتی ہے، ہیٹ انسولیشن کا کام کرتی ہے۔ اب بیٹا اگر کوئی جاندار گرم ماحول کا ہے تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس میں یہ سب ڈرمل فیٹی لیئر، جلد کے نیچے موجود چربی کی تہ جو ہے،
ये बारीक होनी चाहिए। क्यों बारीक होनी चाहिए? क्योंकि उसे ज्यादा हीट लॉस करनी है, क्योंकि वो तो रहता ही गर्म टेम्परेचर में है, उसका बॉडी टेम्परेचर तो हम वक्त ज्यादा होने की कोशिश करेगा और वो उसको नॉर्मल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हीट खारिज करने की कोशिश करेगा। और ऐसे ही इसके उलट अगर देखें बेटा, इसके बरअक्स देखें, तो वो जानवर जो सर्द इलाकों के हैं, जैसा कि बर्फानी रीछ की मिसाल ले लें, तो उसकी जिल्द के नीचे बेटा चर्बी की एक मोटी तह होगी। सर्द पानियों की जो मछलियां होती हैं, उनकी बेटा जिल्द के नीचे चर्बी की एक बहुत मोटी लेयर मौजूद होती है। तो बेटा स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में एक जानवर क्या कर सकता है कि वो अपने माहौल के मुताबिक अपनी सब डर्मल फैटी लेयर में लॉन्ग टर्म चेंजेस ले आता है। लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या? कि या तो वो बारीक हो जाएगी सारी जिंदगी के लिए, या फिर वो माहौल के मुताबिक मोटी हो जाएगी सारी जिंदगी के लिए। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी कि सबडर्मल फैटी लेयर वो लेयर है जो जिल्द के नीचे मौजूद होती है, और इसकी मोटाई या बारीकी जो है वो माहौल पर डिपेंड करती है कि आप किस माहौल में अडेप्टेड हैं। अगर आप गर्म माहौल के जानवर हैं तो हम में ये बेटा सबडर्मल फैटी लेयर बारीक होगी ताकि हीट लॉस करने में कोई परेशानी ना हो। और अगर बेटा जो है हम सर्द इलाके के जानवर हैं तो हमारी जिल्द के नीचे एक मोटी तह होगी फैट्स की, ताकि हीट लॉस कम से कम हो। जैसा कि हम रजाई ले लेते हैं बेटा, तो जो है हमारी हीट जो है माहौल में लॉस होने से बच जाती है और हम सुकून से जो है वो सर्दी की रात गुजार लेते हैं। एंड प्लेग, प्लेग बेटा किसे कहते हैं? आपने देखा, बेड़ देखी होगी बेटा डेफिनेटली, उसके ऊपर ऊन होती है, फर होती है, ठीक है, उसे उर्दू में समोर भी कहते हैं, ठीक है, पशम भी कहते हैं इसे। तो ये जो ऊन है, समोर है बेटा, ये समोर, इसको इंग्लिश में प्लेग कहते हैं। तो आपने देखा बेटा कि सर्द इलाकों के जो जानवर हैं, सर्द इलाकों, पहाड़ी इलाकों की आप बकरियां देख लें, उन पर बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है। बर्फानी रीछ पर जो है सबडर्मल फैटी लेयर तो है ही, उसके बाल भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ये बाल भी जो है बेटा इंसुलेशन का काम करते हैं और ये जानवर के हीट डिसिपेशन को जो है वो मेंटेन करते हैं, हीट लॉस होने से बचाते हैं। जितनी ज्यादा ऊन होगी वो उतना ही बाहर की हीट को, बाहर की ठंड को अंदर ट्रांसफर नहीं होने देगी, और जितने ये ऊन मोटी होगी वैसे ही ये अंदर से उतनी ही हीट को कम खारिज होने देगी। तो बेटा प्लेग का होना, फैटी लेयर इंसुलेशन का होना, ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, बेटा हमें पसीने वाले ग्लैंड्स मौजूद हैं जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, ये हमारी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। अच्छा याद रखिए, स्वेट ग्लैंड की मौजूदगी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है और स्वेट ग्लैंड का काम करना स्टार्ट कर देना ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। एंड लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग, पेंटिंग किसे कहते हैं बेटा? पेंटिंग को बेटा मतलब होता है, इंग्लिश में से कहते हैं शॉर्ट ब्रेथनेस। क्या मतलब है बेटा? शॉर्ट ब्रेथनेस, छोटे छोटे तेज तेज सांस लेना। आपने बेटा अगर कभी कुत्ते को देखा है तो वो जब भाग के थक जाता है या बहुत गर्म दिन होता है तो वो अपनी जुबान निकालकर तेज तेज सांस ले रहा होता है, इसे पेंटिंग कहते हैं। तेज सांस लेना, जल्द जल्द सांस लेना, बरक रफ्तारी के साथ सांस लेना। अच्छा मैं आपको बताऊं, कुछ हद तक पेंटिंग हम में भी है। आप भाग के आए तो हम भी तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, हम में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो हो जाती है। और ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए होती है कि उस दौरान हमारे जिस्म को एक तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब ये कुत्ते में पेंटिंग हो रही होती है बेटा, तो उसमें ये पेंटिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए होती है ताकि ठंडक पैदा हो सके। आपने देखा होगा उसकी जुबान पे, उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे पसीना आया होता है, तो जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से आया हुआ पसीना जो है वो इवेपोरेशन के जरिए उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो वो कूलिंग इफेक्ट काज करता है और कुत्ते को अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल करने में मदद मिलती है। तो हमने देखा स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं बेटा। जिल्द के नीचे मौजूद चर्बी की तह, ये भी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है फॉर द रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज।
जानवरों के जिस्म पर मौजूद ऊन, स्मोर, प्लैग जो है, ये भी बेटा स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है फॉर द रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड एनवायरमेंट। और इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड द लंग मॉडिफिकेशन फॉर पेंटिंग, ये भी बेटा जो है अडेप्टेशन है फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। उसके बाद बेटा हमारे पास है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस यानी फंक्शनल अडेप्टेशंस। इसमें बेटा क्या आएगा, दीज रेगुलेट ब्लड फ्लो टू द स्किन, स्पेशली ग्रेटर ब्लड फ्लो इन वार्मथ टू डिसिपेट हीट एंड लोअर इन कोल्ड्स टू इकोनोमाइज हीट लॉस। बेटा मैं आपको समझाता हूं, आप ये मेरा हाथ देख रहे हैं, आपको ये दो वेन्स उभरी हुई नजर आ रही हैं। गर्मियों के दिन है, बड़ी टेम्परेचर जो है माहौल के ज्यादा टेम्परेचर की वजह से राइज होने लगता है। तो जब बड़ी टेम्परेचर नॉर्मल से ऑप्टिमम टेम्परेचर से राइज होने लगता है तो हमारी बॉडी में बेटा अल्लाह पाक ने ये सलाहियत रखी है कि वो उन वेन्स को फैला देती है, वेजोडायलेशन कर देती है जो कि सरफेस के करीब है। ये वेन्स आप हाथ पे देख रहे हैं, ये सरफेस के करीब हैं, माहौल के करीब हैं, जिल्द के ऊपरी हिस्से पर हैं। तो बेटा ये वेन्स फूल जाती हैं और जिस्म का ज्यादा ब्लड जो है इन हिस्सों को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाता है। जब एक हीट कंटेनिंग ब्लड जो है वो सरफेस पर आएगा तो सरफेस आने की वजह से बेटा उससे काफी हीट जो है माहौल में डिसिपेट हो जाएगी। डिसिपेट का मतलब होता है इखराज, जाया हो जाना, निकल जाना। तो बेटा वो कहता है दीज रेगुलेट ब्लड फ्लो टू द स्किन। जब बेटा हमने अपनी हीट को लॉस या इकोनोमाइज करना होता है तो ब्लड फ्लो को स्किन की तरफ रेगुलेट किया जाता है। ग्रेटर ब्लड फ्लो इन वार्मथ, गर्मी में ज्यादा ब्लड फ्लो होता है टू द स्किन फॉर व्हाट, टू डिसिपेट हीट, ताकि हीट ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाए और बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए। और अगर सर्दी की बात करें एंड लोअर्स इन कोल्ड, तो ठंड के दिनों में आप जानते हैं हमारे हाथ पांव वैसे ही सुकड़ जाते हैं, इनको फिर हम लोशन वगैरह लगा रहे होते हैं ताकि ये अपनी नॉर्मल शक्ल जो है वो बरकरार रखें। तो उसकी वजह बेटा ये होती है कि सरफेस की कैपिलरीज और वेन्स जो हैं वो सुकड़ चुकी होती हैं। सर्दियों के दिनों में आपको ये वेन्स नजर नहीं आ रही होती क्योंकि इनकी जानब ब्लड फ्लो बहुत कम कर दिया जाता है। क्यों कम किया जाता है? क्योंकि अगर वो सरफेस की तरफ आएगा तो उससे हीट डिसिपेट हो जाएगी और हम डिसिपेट तो करना ही नहीं चाह रहे, हम तो इकोनोमाइज करना चाह रहे हैं, हम तो बचाना चाह रहे हैं क्योंकि ठंड की वजह से तो हम में पहले ही हीट की कमी हो रही है। तो बेटा ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है कि गर्मी के दिनों में वेजोडायलेशन हो जाती है, वेन्स फैल जाती हैं, और सर्दियों के दिनों में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी वेन्स जो हैं और कैपिलरीज जो हैं वो सुकड़ जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा बेटा ऑल्सो द एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल्स काजेज प्लमेज फ्लफिंग। आपने बेटा देखा होगा कुछ परिंदे आपने देखे होंगे वो पानी में नहा के अपने पर जो है फड़फड़ा रहे होते हैं। अच्छा, ये पानी में नहा के फड़फड़ाने की मिसाल मैंने इसलिए दी कि ये आपने जरूर देखा होगा, वरना कुछ परिंदे जो हैं वो पानी में नहाए बगैर भी अपने परों को, कबूतर कभी देख लें गर्मियों में तो अपने परों को बार बार फड़फड़ा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर मौजूद गर्म हवा जो है वो माहौल में चली जाए और ठंडी हवा जो है वो दोबारा से पेनिट्रेट कर जाए। तो प्लमेज फ्लफिंग के जरिए भी बेटा जो है कुछ परिंदे जो हैं वो अपनी हीट को इकोनोमाइज करते हैं। अच्छा, प्लमेज फ्लफिंग की एक किस्म जो है बेटा आपने उसमें देखा होगा, कभी सर्दियों में किसी बाहर खड़ी बकरी को देखिएगा, वो अपने बाल खड़े कर लेती है और सुकड़ के खड़ी होती है, ठीक है। वो बाल क्यों खड़े किए होते हैं? क्योंकि वो ही अपनी इस फर में, अपनी इस ऊन में, अपने इन बालों में हवा को ट्रैप कर लेते हैं। हवा जो है वो बड़ी टेम्परेचर की वजह से गर्म हो जाती है और बैरूनी ठंडे टेम्परेचर और जिस्म के अंदरूनी टेम्परेचर के दरमियान कंबल का काम करती है। यानी जब बकरियां या दूसरे जानवर अपनी ऊन को खड़ा कर लेते हैं, उनमें आके हवा फंस जाती है और गर्म हो जाती है। अब ये जो गर्म हवा है ये उस जानवर के लिए कंबल का, रजाई का काम करती है, बाहर की आउटसाइडर ठंड को अंदर घुसने से रोकती है, हीट के ज़िया को रोकती है। इसे प्लमेज फ्लफिंग कहते हैं। प्लमेज फ्लफिंग वैसे ये टर्म जो है ये परिंदों के पर फड़फड़ाने के मुतालिक है।
सिमिलरली एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इज डन फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि गर्मी के वक्त जो है पसीना आना शुरू हो जाता है स्वेट ग्लैंड से, और पानी जो है पसीने का वो जब इवेपोरेशन के जरिए उड़ता है तो हमें इवेपोरेटिव कूलिंग मिलती है। ठीक है, तो ये भी बेटा हमारी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में हमने जिस्म की स्किन के ऊपर की तरफ जो वेन्स हैं उसकी तरफ ब्लड का ज्यादा आना देखा गर्मी के दिनों में, और ब्लड का कम आना देखा सर्दी के दिनों में। फिर हमने प्लमेज फ्लफिंग की बात की, बालों को, और परिंदे अपने परों को फड़फड़ाते हैं ताकि जो है अगर गर्मी के दिन है तो ठंडी हवा ट्रैप हो सके। और इवेपोरेटिव कूलिंग पढ़ी बेटा हमने, जिसका मकसद ये है कि जिस्म के टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जाए, नॉर्मलाइज किया जाए। उसके बाद है बेटा बिहेवियरल एडेप्टेशन, रवैये की एडेप्टेशन, रवैयाती मुताबिकतें। इसमें बेटा क्या है, these include moving of the animal to an environment where heat exchange between these is minimal। बेटा गर्मी के दिन में आप धूप में नहीं खड़े होते हैं, आप ढूंढते हैं साया, ढूंढते हैं आप किसी दरख्त के नीचे, किसी शेड के नीचे खड़े होने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जिस्म में अजाफी हीट ना आए, आपका बॉडी टेम्परेचर राइज ना हो। ऐसे अगर बेटा ठंड हो तो हम भागकर कमरे में घुसने की और कमरे में घुसकर रजाई में घुसने की कोशिश में होते हैं। ठीक है, यानी उन एरियाज में जाना पसंद करते हैं जहां हीट जो है हीट एक्सचेंज जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम हो सके। मैक्सिमम कब की बात है, हीट गेन की बात है सर्दी के दिनों में, और गर्मी के दिनों में हम हीट लॉस के चक्कर में होते हैं तो शेड में रहना पसंद करते हैं। तो बिहेवियरल एडेप्टेशन में बेटा सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एनिमल जो है वो गर्मी के दिनों में छांव में और सर्दी के दिनों में धूप में जाने की कोशिश में होता है ताकि हीट एक्सचेंज जो है वो माहौल के मुताबिक हो सके, रेगुलेट हो सके। मिसाल दी बेटा, वो कहते हैं ग्राउंड स्क्वायरल्स। स्क्वायरल्स बेटा कहते हैं गिलहरियों को। ग्राउंड स्क्वायरल्स बेटा इनको इसलिए कहते हैं कि ये जो है बिल बना के रहते हैं। बिल समझते हैं आप, मट्टी खोद के, जिसे पंजाबी में डोड कहते हैं, सही है, उसमें बेटा ये इसलिए इनको ग्राउंड स्क्वायरल्स कहते हैं कि ये जमीन में बिल बनाकर रहती हैं, जैसे कि चूहे और खरगोश वगैरह बिल बना लेते हैं। मूव टू बरोज। बरोज किसे कहते हैं बेटा, बरो कहते हैं सियाड़ को। ये जब हम हल चला लेते हैं ना खेत में तो वो खालियां सी बन जाती हैं, उन खालियों को फरोज या फिर बरोज कहते हैं। ठीक है, आपने वो क्लियरिंग इन द स्काई में ये लफ्ज पढ़ा होगा। तो ग्राउंड स्क्वायरल जो है ये बरोज की तरफ चली जाती हैं इन मिड डे। ठीक है, इन मिड डे हीट, यानी जब सूरज जो है आप कह लें उरूज पे होता है और जे कमाल पे होता है और शुआएं बरसा रहा होता है, तो ग्राउंड स्क्वायरल जो है अपने आप को जाके अपनी बिल में बरो कर लेती है। तो बरो का यहां मतलब जो है ऐसी बिल है जिसमें जाकर अपना जिस्म छुपाया जा सके, अपने आप को आप कह लें दफन कर लेती हैं। अब दफन करने से मुराद ये नहीं कि अपने आप ऊपर मिट्टी डाल लेती हैं, यानी ऐसी बिल में घुस जाती हैं जहां हीट एक्सचेंज जो है वो मिनिमम हो जाता है। लिजर्ड्स बास्क इन सन टू गेन हीट। बेटा ये जो छिपकलियां हैं सर्दियों के दिनों में ये धूप में जाके सन बास्किंग करती हैं ताकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ सके। और इसके अलावा इनको सन बास्किंग का एक ये भी फायदा होता है कि इनको अपनी खुराक की डाइजेशन में भी मदद मिलती है। तो अब आप देख रहे हैं कि ग्राउंड स्क्वायरल जो है वो गर्म दिन में अपने आप को मिट्टी में बरी कर रही हैं, और जो लिजर्ड्स हैं वो सर्दी के दिनों में अपने आप को धूप में एक्सपोज कर रही हैं। तो यानी सीजन के मुताबिक, माहौल की ठंड या गर्मी के मुताबिक जानदार अडेप्टेशंस इख्तियार कर लेते हैं। एनिमल्स ऑल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर। आपने देखा होगा बेटा सर्दियों के दिनों में हम अपने हाथ जो है वो दबाए होते हैं एक दूसरे के साथ, और आप कह लें सुकड़ के बैठे होते हैं। ये सुकड़ के बैठना क्यों होता है, हम अपना सरफेस एरिया कम कर रहे होते हैं जिससे हीट ने माहौल में डिसिपेट होना होता है। तो मतलब हम अपने हाथों को जो है बगलों में छुपा लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, ताकि हम इस एरिया को कवर कर लें और हीट जो है वो माहौल में कम से कम डिसिपेट हो। और जब गर्मी होती है तो हम अपने कपड़े यूं फैला रहे होते हैं, कपड़ों को झाड़ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें हवा लग सके, ताजा हवा लग सके। गर्मी से जब हम पंखे के नीचे आए तो एक लंबा सांस खींचते हैं और अपने कपड़ों को यूं हिलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा हमारे जिस्म को लग सके।
اب ہم اپنا سرفیس ایریا بڑھانا چاہ رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ جسم سے ماحول میں لاسٹ ہو جائے, ہمارا جسم ٹھنڈا ہو جائے. اور اگر سردی کی بات کریں تو ہم سکڑ کے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, پنجابی میں کہتے ہیں کنگڑ کے بیٹھنا. تو سکڑ کے اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری بڑی سرفیس جو ہے وہ کم از کم ماحول میں ایکسپوز ہو اور ہیٹ کم سے کم ڈسیپیٹ ہو. یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک. اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.